جب ملا کے پڑھا کرتے تھے تو اس نماز کو الگ الگ کرنا کہاں سے ہوا؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ نہیں. شبلی نعمانی وہ علامہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی لکھتے، شاہ ولی اللہ محمد اجازت الخفا میں لکھا تو ساری کتابیں مارکیٹ میں ویڈیوز میں درج ہے. سرکار دو عالم کے دور سے لے کے پہلے دور خلافت میں بھی نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں. دوسرا دور آیا تو دوسرے صاحب نے خلیفہ دوم نے اعلان کیا کہ نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھی جائیں ورنہ میں اس کو سزا دوں گا. اب نمازیں الگ ہو گئی، اب نمازیں الگ ہو گئی. تو کلمہ کس کا پڑھا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ. طریقہ کس کا اپنایا جاتا ہے؟ جو نہ رسول ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ معصوم ہے. تو رسول کی سنت کے خلاف جانا بدعت ہے. تو جو لوگ بدعت پہ چلتے ہیں ان کو سنت کہنے کا کام نہیں ہے. ہماری نمازیں رسول اللہ سے لی اور جو رسول اللہ کی نماز ہے وہ علی کی نماز ہے، جو علی کی نماز ہے وہ مولا حسن کی، اور جو مولا حسن کی مولا حسین کی تاخیر حجت سب کی نمازیں. کیونکہ ہم نے نمازیں مختلف قبیلے کے لوگوں سے نہیں لی ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ ہم نے نمازیں ان سے لی جو پورے سلسلے میں ایک دوسرے کے طریقے کے آئی وٹنس ہیں. سرکار دو عالم نماز پڑھتے جیسے سرکار دو عالم پہ جانے کے زمانے کے بعد مولا علی نے نماز پڑھائی. اب جب مولا علی نے نماز پڑھائی تو بخاری شریف میں باب الصلاۃ پہلی جلد میں حدیث نمبر 749 ہے. ترجمہ علامہ وحید زمان، یہ میرے پاس مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیجیے. مولا علی نے نماز پڑھائی اور جب مولا علی نے نماز پڑھائی تو ان کے نماز پڑھانے کے بعد اصحاب رسول نے کہا سبحان اللہ، آج علی کے پیچھے نماز پڑھ کے رسول کی نماز یاد آ گئی. علی کے پیچھے نماز پڑھی تو رسول کی نماز یاد آ گئی. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اب تک جس کے پیچھے پڑھی اس کی نماز رسول کی نماز نہیں تھی، علی کے پیچھے پڑھی تو رسول کی نماز یاد آئی. ویسے ہی سجدہ، ویسے ہی رکوع، ویسے ہی رفع یدین کرنا اور تکبیر پہ سلام کا ختم کرنا. یہ جو طریقہ رسول کا وہ طریقہ علی کا ہے. اب صحابہ کی گواہی ہے کہ علی کی نماز رسول کی نماز. تو علی کے پیچھے کس نے پڑھی؟ مولا حسن نے. ان کے پیچھے کس نے پڑھی؟ مولا حسین نے. ان کے پیچھے کس نے پڑھی؟ زین العابدین نے. ان کے پیچھے کس نے پڑھی؟ مولا باقر نے. ان کے پیچھے مولا صادق نے. کہاں آخر حجت پورا 12 اماموں کا سلسلہ ہے نمازوں کے ملا کے اس پڑھنے کے طریقے پر. ہمارا آخری امام سرکار حجت ہے. تو الحمدللہ ہم نے الگ الگ راویوں سے نہیں لیا ہے، ان سے نمازوں کو لیا ہے کہ جو پہلے کی نماز ہے وہی آخر کی نماز ہے، جو پہلے کا روزہ ہے وہی آخر کا روزہ ہے. نہ قول میں اختلاف ہے، نہ قول میں فرق ہے، نہ فعل میں فرق ہے. 12 ہے، قول ایک ہے، 12 ہے، عمل ایک ہے. 4 ہو کے الگ الگ نہیں ہے، 12 ہو کے ایک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ نمازیں الگ الگ کیوں کی گئی؟ خود ہی پوری چیپٹر ہے جمع بین الصلاتین، سیاست میں چیپٹر ہے. چیپٹر کا نام ہے جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا. جب صحابہ گواہی دے رہے تو پھر اس کے بعد کون ہے سنت پر؟ ہم نبی کی سنت پر نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ ہنس رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی جھوٹ سچ ہو گیا، سچ جھوٹ ہو گیا. جب جھوٹے کو
तरीके सुन्नत पे चलने वालों को कहते हैं अहले सुन्नत, यानी सुन्नत वाले। किसकी सुन्नत वाले? सरकार दो आलम की। तो सरकार दो आलम की सुन्नत पता होगी। अब आइए जरा रोजे की तरफ। रोजा रखते या नमाज पहले, रोजा बाद में, इफ्तार बाद। लोगों के पास इफ्तार पहले, नमाज बाद। अब कौन सही कौन गलत? हजरत इमाम मालिक, 4 इमामों में एक इमाम है इमाम मालिक। वो अपनी किताब जो बुखारी से भी पहले की किताब अल मौता, उसमें वो रमज़ान के चैप्टर में, रोज़ा खोलने के चैप्टर में लिखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम रोज़ा मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद खोलते थे। अब रसूलुल्लाह क्या करे? अल-हक़ मा अली। तो जो हक़ अली के साथ है, तो जो अली वाले वो हक़ वाले, हक़ पर चलने वाले। तो हमने रोज़ा रसूलुल्लाह कहाँ से सीखा? मौला अली से। मिशनरी क्या कहेंगे? शिया कहते अली के चाहने वालों को। तो जब शिया नाम है अली के चाहने वालों का, तो अली का अपना तरीका नहीं, अली का जो तरीका है वो तरीका तो रसूलुल्लाह का है। और जिनको इमाम मालिक कहा जाता है उन्होंने साफ लिखा है कि ये तो मौला अली का तरीका है कि मगरिब के बाद। तो मौला के तरीके को क्यों बदला गया? जबकि मौला के पास जो कुछ है वो नबी का दिया हुआ है, उनके वसी है, उनके जानशीन है, उनका कौल नबी का कौल, उनका फेल नबी का फेल, उनका। तो अली को छोड़ने से तो नबूवत का दामन छूट जाएगा। रोजे को फाके में बदलना है तो अली को छोड़ दो। अगर वक्त से पहले खुलेगा तो क्या होगा? फाका हो जाएगा। फाके और जंग में फर्क है ना। फाके में और जिहाद में, जिहाद शराइत के साथ है और जंग लूट मार का नाम है। ऐसे ही फाका भूखे रहो, प्यासे रहो, क्या सवाल। लेकिन रोजा अपने शराइत के साथ है। अब जरा हदीस को कुरान से देखना है, खिलाफ में कुरान है तो हदीस नहीं माननी। आओ जरा कुरान से देखे तो अल्लाह ने क्या कहा? कुल वशरबू हत्ता तबय्यना लकुम अल-खैतिल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र व अक़ीमुस सियाम इलल लैल। खाओ पियो यहाँ तक के रात की स्याही सफेदी में बदलेगी सहर का दिन। व अक़ीमुस सियाम इलल लैल। लैल का मतलब रात। रात कब होती है? जब सुर्खी आसमान पे की हट जाती है और सियाही आ जाती है तो उसको कहते हैं लैल। जब तक शफक आसमान पे सुर्खी नजर आ रही है तो सूरज अभी मौजूद है, हिजाब में शुआएं हैं, वो शुआओं की वजह से आसमान लाल दिख रहा है। जब आसमान लाल सुर्ख नजर ना आए और सियाही फैल जाए तो आप उसको कहते हैं लैल। तो लैल अल्लाह क्या कह रहा है? इलल लैल। अपने रोजे को रात पे तमाम करो। रात की इब्तिदा का नाम है मगरिब का वक्त, जो सूरज गुरूब होने के बाद होता है। तो हमारा क्या नुकसान हुआ? लोगों ने हमारी जिद में छोड़ा तो हमारा क्या नुकसान हुआ? अरे पहले कौन? पहले बाद में कौन? राफी है, शिया है, कुछ भी कह लो। अली का तरीका, नबी का तरीका, नबी की सुन्नत के आगे किसी का कोई तरीका नहीं। तो सुन्नत पे चलने वाले कौन है? अली वाले। अली वालों का रोजा रोजा है और जिन्होंने अली को छोड़ा और अली वालों को काफिर कहा, उनका अमल फाके में बदल गया। ये क्या है? खुदा की दी हुई जिल्लत। आप गौर करते जाए, ये बड़ा अंधेर है तारीख का। मामला पूरा उलट दिया गया, मामला पूरा उलट दिया गया। उल्टे को सीधे का बोर्ड लगा दिया गया और जो सीधा है उल्टा कहा जाता। वजू कर रहे थे उल्टा वजू। ये तो कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है वमसहू बिरुऊसिकुम अर्जुलकुम। सर पे हाथ फेरो, पैर पे हाथ
پھیرو مسا کرو. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں مسا کا لفظ وضو میں پیر کے لیے موجود ہے، پھر اس کے بعد میں اندھے بننے کا کیا مطلب ہوا؟ اب ایسے لوگ کہتے ہیں قرآن میں علی کے خلافت کا ذکر دکھاؤ، علی کا نام دکھاؤ. ہم دکھا دیں گے، ماننے کی گارنٹی کیا ہے؟ ماننے کی گارنٹی کیا؟ قرآن میں پیروں پہ وضو لکھا ہوا موجود ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ کر رہے تھو. وقصی غسل ہے، غسل یعنی دھونا. ومسا مسا ہے، مسا یعنی ہاتھ پھیرنا، پوچھنا، ہاتھ لگانا، مس کرنا. صاف صاف لفظ ہے، ترجمہ ہی غلط. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جو ترجمہ حدیث، اس میں انہوں نے پیروں پر ہاتھ پھیرو لکھا، لیکن ان بریکٹ کیا کیا؟ دھو. یعنی ہاتھ پھیرو اللہ کہہ رہا ہے، ان بریکٹ میں اپنی بات. یہ بریکٹ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ سمجھانا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے یا پیروں پہ ہاتھ مسا کرو، مسا کرو، مسا کا مطلب ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ تو صحیح کیا، لیکن بریکٹ کیا کہہ دیا؟ بریکٹ لگا کے دھو. اللہ کہہ رہا ہے مسا کرو، جب خود ہی ترجمہ کر رہے ہاتھ پھیرو، تو دھو کیسے ہو گیا؟ ایک اللہ کی بات، ایک ملا کی بات. جو اللہ کی بات مانے گا وہ علی کا شیعہ ہے، اور جو ملا کی بات مانے گا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کیونکہ اللہ ایک کہہ رہا آپ ایک کہہ رہا. اب ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا تو قرآن میں علی کے خلافت کا ذکر دکھاؤ. معمول دکھا دیں گے بھائی، قرآن میں موجود ہے. آپ جو بات ہے اسی پہ تو قائم نہیں ہے نا. اچھا چلیے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. قرآن میں ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ ہے، سوائے سورہ توبہ. ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن. تو جب قرآن میں دیکھ کے پڑھتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب نماز میں پڑھتے تو بسم اللہ چھوڑ دیتے. کہیں بھی نماز ہو رہی ہو، مائک پر بیٹھ گئی یا کسی بات سے چلے جائیں گے، بیٹھ کے دیکھیں. کوئی کہے کہ نماز نہیں پڑھنے یا پیرنا درد ہے، تھوڑی دیر بات کرو. آپ سنیے، کوئی نہیں پڑھتا بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ پڑھتے ہی. جب قرآن میں ہر سورے کے آگے بسم اللہ لکھا تو کیا وہ بسم اللہ جزوِ سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جزوِ سورہ نہیں ہے تو قرآن میں اضافہ ہے، تو آپ اضافے کے قائل ہو گئے. اور اگر قرآن میں اضافہ نہیں ہے، وہ جزوِ سورہ ہے، تو جب سورہ پڑھتے تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے حالت نماز؟ یہ طریقہ کیوں بولا کیا گیا؟ اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہے ان کے ماموں. پھر کیسے بات جوائن ہوگی؟ ماموں جاتا اثر ہی. ماموں نے کیا کیا؟ شام میں مدینے سے کچھ اصحاب آئے. علامہ فخر الدین رازی، ان کی اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے، جو اردو جاننے والے اردو میں دیکھیں، ورنہ عربی میں تو ہے نہیں. مدینے سے لوگ آئے، پتہ چلا اصحاب رسول آئے، نماز کا وقت ہوا. مانگیا نے کہا میں نماز پڑھوں گا. صاحب نے کہا بے شک آپ پڑھائیے، آپ اس وقت بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، آپ کے مہمان ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. آپ نے نماز پڑھائی، بسم اللہ کہا گیا اور سیدھے شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. پیچھے صحابہ کے مدینے کی، انہوں نے کہا سرقتا معاویہ، سرقتا معاویہ، معاویہ تو نے چوری کی، معاویہ تو نے چوری کی. جملے کو بدل دو ذرا ٹیسٹ ہو جائے گا. نماز میں کہہ رہے ہیں، نماز توڑ کے نہیں کہہ رہے، حالت نماز میں کہہ رہے سرقتا معاویہ، سرقتا معاویہ، معاویہ تو چور ہے، معاویہ تو چور ہے، معاویہ تو نے چوری کی ہے. حالت نماز میں مصلی پہ رہ کے معاویہ پہ تبرہ پڑھ رہے. تو پتا
جس کو امام فخرالدین رازی کہتے ہیں علماء اسلام اس کو امام کہتے ہیں، امام فخرالدین رازی۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ معاویہ نے ایسے کیوں کیا؟ وہ سوال بھی اپنا خود ہی کرتا، جواب دیا، کہتا معاویہ نے اس لیے کیا تاکہ علی کے جو آثار ہیں وہ مٹا دیے جائیں، کیونکہ علی نماز میں بسم اللہ بآواز بلند کہتے تھے، تو علی کی دشمنی میں اس نے بسم اللہ ہی نہیں کہا تاکہ علی کا طریقہ رائج نہ ہو، اس کا طریقہ رائج ہو جائے۔ اب جتنے لوگ کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں، ان میں کوئی بسم اللہ نماز میں پڑھتا ہی نہیں ہے، طریقہ معاویہ کا، نعرہ علی کا، اس کے طریقے میں چلنا معاویہ۔ اور نعرہ کیا ہے؟ ہم بھی علی کو مانتے، تو اگر مانتے ہوتے تو بھی لگتے کیوں؟ ہم بھی کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مسئلہ ہے نا، ورنہ ہم تو نہیں کہتے کہ ہم بھی علی کو مانتے، ہم ہی مانتے کہ علی کے طریقے پہ چل رہے۔ تو نماز میں بسم اللہ چھوڑ، تو فرسٹ از رانگ، بسم اللہ ہی غلط۔ تو یہ جتنے ہوتے ہیں یہ بغیر بسم اللہ کے بسم اللہ ہی غلط ہے۔ اچھا بسم اللہ سے انحراف کیوں ہوا ہے؟ معاویہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مولا کو نہیں جانتا ہو، اجنبی تھا، اس کو سب پتا تھا، اسے سب کچھ پتا تھا کہ علی نے کہا نقطے کا استعمال بسم اللہ۔ اب جب بسم اللہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کی بیس سے دماغ سیدھا نقطے پہ آئے گا، نقطے پہ آئے گا تو علی پہ جائے گا، اور علی پہ جائے گا تو میرا کیا ہوگا، مجھے کون پوچھے گا؟ اس نے کہا بسم اللہ ہی ہٹا۔ تو آج تک لوگ بسم اللہ نہیں، حنفیوں شافعی پڑھتے، شافعی میں ہے، حنفیوں میں نہیں۔ اور دنیا میں کثیر تعداد، سب سے کم ہندوستان پاکستان میں 95% حنفی ہے نا؟ یہ والے حنبلی، یہ والے شافعی، اور یہ والے مالکی۔ تو وہ جو تحت السرہ یعنی ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ہیں، وہ سب کے سب پرو معاویہ، کوئی بسم اللہ اس میں نہیں پڑھتا۔ اور سب کا دعویٰ کیا ہے؟ ارے حضرت علی بیچ آنے والا، ارے کیا مرتبہ ہے، تو طریقے پہ چلو نا۔ ان کا قصیدہ ان کے فضائل پڑھ کے کیا کرے؟ رسول اللہ نے علی کو مولا اس لیے کہا تاکہ لوگ ان کی اطاعت کرے، ان کے طریقے پر چلے، طریقے پہ چلتے نہیں، طریقہ معاویہ کا اور علی کا بسم اللہ پڑھنا نبی کی سنت، تو علی کو چھوڑنے سے نبی کی سنت چھوٹ گئی، علی کو چھوڑنے سے قرآن کی آیت چھوٹ گئی، علی کو چھوڑنے سے کلام الرحمن چھوٹ گیا، علی کے چھوڑنے سے شیطان ساتھ ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل بیت سے جن لوگوں نے مودت کا دعویٰ تو کیا مگر ان کی پیروی نہیں کی، تو نقصان کس کا ہوا؟ اس امت کا ہوا۔ بسم اللہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کا نقصان ہے، قرآن کا نقصان ہے، مولا علی کا نقصان ہے، اس امت کا نقصان ہے۔ اب سمجھے آپ 72 میں ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں علی سے دامن چھوٹ گیا، اور جہاں چھوٹ گیا وہی ختم ہو گئی۔ تو نمازیں ملا کے پڑھنے میں سنت کے عمل ہم کرتے، اور روزی قائم کرنے میں نبی کی سنت کے عمل ہم کرتے، اور بسم اللہ پڑھنے میں نماز میں اس پر عمل ہم کرتے۔ صاحب رسول اکرم کی سنتوں پہ عمل ہم کریں اور وہ ڈھاکہ لگ جائے۔ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں کی شریعت پہ چل رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اور سرکار دو عالم کے قانون و شریعت پہ ہم چلتے ہیں۔ لوگ کلمہ پڑھتے رسالت کا اور طریقے پہ چلتے سقیفہ والوں کے، جو پیشوایان سقیفہ کے طریقے پہ عمل کرے، انہیں چاہیے کہ کلمہ بدل لے۔
अरे भाई जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो रसूलुल्लाह का तरीका कहाँ है? नहीं है, तो फिर कलमा बदल दो। है कलमा रसूलुल्लाह का नाम मत रखो, जिसकी शरीयत पे चल रहा है, जिसके तरीके पे चल रहा है उसका नाम रखो। और जब जब अली की इस तरीके को, अहले बैत के तरीके को, रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़कर लोगों ने चलने की कोशिश की, या तो आपस में लड़ के फना हो गए या कुफार के हाथ से भी लोग। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बेशुमार उलमा है, पूरे हिंदुस्तान के, आलम इस्लाम के, इंडिया का नुमाइंदा बोर्ड। जज ने कहा देखो जी कुरान पूरा मैंने पढ़ा, हदीसें मैंने छान डाली, रसूलुल्लाह ने एक नशिस्त में एक जगह पर इजाजत नहीं दी कि एक ही वक्त में तलाक 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 कह दो, तलाक हो जाए। ये तरीका अल्लाह का नहीं है दिया हुआ, ये कुरान का नहीं है, ये रसूल का नहीं है, तुम्हारी हदीसों में जज कह रहा है। आपकी हदीस की किताब में न रसूल के दौर में था, न पहले खलीफा के दौर में था, ये दूसरे दौर में हुआ। सारी खराबी दूसरे की, सारी खराबी दूसरे दौर की है, जिसमें दूसरा ही बड़ा खराब। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में जज ने, वकील ने कहा आइए अपनी किताबें आके जज को बता दी, वहाँ डिबेट कीजिए। अब इसमें भी क्या है? अहले हदीस है, अहले हदीस कहते हैं देखो जी हम हदीस रसूल पे चलते हैं, खलीफा चाहिए हमारे खलीफा है, उनके खिलाफ सुन नहीं सकते, मगर हम उनका कलमा नहीं पढ़ते, उनकी शरीयत पे नहीं चलते। वो सहाबी है, खलीफा इज्जत है, मगर हमारी शरीयत जो है शरीयत मुस्तफा है, लिहाजा हम ट्रिपल तलाक को नहीं मानते, एक विड्रॉ। अब ये लोग हैं अदालत की चक्करे काट रहे, जज कह रहा मुझे कुछ लंबी तकरीरें मत दो, एक कुरान की आयत दो, एक रसूल का तरीका हुजूर की जबान से तुम्हारी किताब में दिखाओ कि हुजूर ने 3 तलाक देने का इजाजत दी एक ही वक्त में। आज तक देवबंद, नदवा, कोई वहाबी, कोई गैर वहाबी, कोई आ ही नहीं सका, जज ने फैसला सुना दिया, आज के बाद कोई 3 तलाक दे के औरत को सताएगा तो उसे जेल। यानी पता चला कि आज शियों को डरा धमका के कुछ भी कह लें, लेकिन जब अल्लाह का कानून नाफिज है कि बंदे का कानून नहीं चलेगा, अल्लाह का कानून चलेगा। हैरत की बात है कि जज है हिंदू, जज है मुसलमान की जबान में काफिर, तो वो काफिर मौलाना को पढ़ा रहा है कि तलाक ऐसे नहीं देते, ऐसे देते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद का तलाक का मसला दूसरे साहब से मिलता है, नमाज दूसरे साहब से मिलती है, आपने नमाज का तरीका दूसरे खलीफा से, तलाक का तरीका दूसरे खलीफा से, इफ्तार दूसरे खलीफा का तरीका, तरावी दूसरे खलीफा के दौर की इजाज़त है। तो आपने रसूलुल्लाह से लिया क्या? जो रसूल के तरीके पे चले, हुजूर से पूछ ले, वो है रसूल की सुन्नत पे चलने वाला, और रसूल की सुन्नत की जिद का नाम है बिदअत। तलाक का तरीका है कि पहले तलाक हो, मोहलत, उसके बाद रुजू करने की आपको इजाजत, चाहे तो तलाक देने के बाद में जो मुद्दत है, जो पीरियड है, उसमें रुजू कर लो, निकाह की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मुद्दत गुजर जाए अब निकाह करो उसी औरत से, दूसरी बार है फिर निकाह करो, तीसरी बार है अब तलाक बाइन हो गई, अब तुमने शरीयत को खेल बनाया, अब मुद्दत खत्म हो गई, अब हमेशा के लिए विदाई हो जाएगी। ये सही तरीका, एक साइकोलॉजिकल के दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिले, है ये नहीं एक
तरावी पढ़ रहा है क्या? तलाक की तरावी और उसके बाद निकल गई बात। अब परेशान हो गए, चाय पीने की परेशानी, खाना खाने की परेशानी, मौलवी साहब करने चले गए, मौलवी साहब बचा ले गई, वो तो गई, हो गया। अब उसे बचाने के लिए अदालत में गया, क्या करूं? कहने का नाना मैं अपनी बात नहीं करता भाई, तेरे नबी ने तरीका है बता, तेरे अल्लाह ने किताब में लिखा। अरे तो फिर ये कहाँ से आता? फुला से आया। अब जितनी बीवी से मोहब्बत करता है, कम से कम बीवी की मोहब्बत में तो उसे बुरा कहेगा जिसने बीवी को छोड़ा दिया। यानी अपनी बीवी की मोहब्बत में उससे तबर्रा जरूर करे कि जिसने बीवी को छोड़ा दिया। अल्लाह ने नहीं छोड़ाया, रसूल ने नहीं छोड़ा। तो ये 3 तलाक का मसला होता है अदालत में। और वो भी अच्छा हुआ भाई, तलाक ना 2 है ना 4 है, 3 ही है। किसी औरत पे जुल्म किया, रसूल ने नहीं नमाज देता। जो तरीका है वो है। तो वाक़या अहले सुन्नत तो हम हैं कि नबी की सुन्नत पे चल रहे, और जो लोग दावा करते हैं वो नबी की सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं, वो भी धर्म पे चल रहे। हमारे यहाँ जुमा है, जुमा होता है, जुमा की अजान होती है, मगर इंदर मिंबर नहीं होती। तीसरे दौर में ऐसा हुआ कि जुमा लोग बढ़ गए। खलीफा साहब ने कहा कि अजान दो, ताकि अब कौन सी अजान हो गई, खुदा नहीं दो, लोग जमा हो जा रहे। फिर अजान दी गई। उन्होंने अपने दौर में जो राइज कर दिया वो आज तक है। एक अजान वहाँ होती है मिंबर पे, एक अजान होती है मकाम मौज़न पर, एक अजान होती है मिंबर पर। जब खतीब बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद सामने अजान दी जाएगी। ये तो किसने निकाला भाई? रसूलुल्लाह ने। ये तीसरे साहब की इजाज़त है। जो तीसरे साहब की इजाज़त है उसमें जुमा हो गया। अगर कोई शरीयत में कमी करे तो क्या कहते हैं? काफिर। बढ़ा दे, काफिर। अब यहाँ सब चुप है, शरीयत बदली जा रही है और आप कह रहे रज़ी अल्लाह। जरा अचानक पर्सन अल्लाह पे बात आ जाए अदालत से तो सब खड़े हो जाते हैं। पर्सन अल्लाह में मदार इस्लाम खतरे में। इस्लाम तो शुरू से ही खतरे में रहा। इस्लाम का स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया। साइन बोर्ड इस्लाम का है, लेकिन सारे काम तो अपने। साइन बोर्ड इस्लाम का है, माल सकीफा का है। माल सकीफा का है, साइन बोर्ड इस्लाम का है, नाम शरीयत का है। तो आज इस्लाम खतरे में। अरे इस्लाम तो बहुत पहले से खतरे, इसलिए तो करबला में मौला ने फरमाया क्या मैंने सुन्नत को बदल दिया जो तुम कत्ल करने आए हो? जिन्होंने सुन्नत को बदल दिया उनकी बैत करते रहे, और मैं आज सुन्नत रसूल की ताईद में खड़ा हूँ तो मुझे कत्ल करने आए हो? पता चला जो तर्क सुन्नत करता है, नबी की सुन्नत के खिलाफ जाता है, बस ज़ुबान हुसैन वो वाजिबुल कत्ल है। हम किसी ऐसे वैसे पे तबर्रा नहीं पढ़ते, उसी पे पढ़ते हैं जो शरीयत की ज़बान में वाजिबुल कत्ल है। वरना कि हमें क्या मतलब है? नबी की सुन्नत को कोई बदल रहा हो, हम चुप बैठे रहे, नहीं हमारे इमाम ने ये बैठते जुल्म हुआ, वो तो उम्मत देखे ना देखे हमसे कोई मतलब नहीं। मगर अब जब शरीयत की दुहाई देते हैं तो शरीयत भी तो बदल गई। क्या नहीं, उनका हुक्म भी शरीयत है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि सुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, मेरी और मेरे खुलफा की सुन्नत पे चलो। हाँ तो ठीक है, अगर रसूलुल्लाह ने बनाया तो रसूल का खलीफा है, क्या रसूल ने बनाया नहीं बनाया तो फिर हदीस का मतलब क्या होगा? जिसे रसूल बनाए और सुन्नती खुलफाई है, जिसे नबी ने बनाया ही नहीं है वो नबी की जगह बैठेगा
अरे नहीं भाई मैं तो, अरे तो क्या बात है, जरा उस तरह तो चला नहीं आता है, जरा चला दीजिए। लोग कहते पागल हो गए, खुदकुशी कर रहे। डॉक्टर के हाथ में जो होता है उसे पता है कि इसका संभालना और इसका दर्द कैसे लगाना और निकासी खून की कैसे, और इसे क्या पता है, ये तो नाई है। नाई के हाथ में उस तरह देख के आप सर्जन की जगह बिठा रहे हो, चलेगा? नहीं चलेगा। क्या होगा? रिएक्शन ऐसे होगा, मौत आपके हो जाएगी। तो रूहानी तौर पे सब चलती फिरती लाशें मुर्दा है, अपने को जिंदा समझ रहे हैं कि जो इससे वापसता नहीं है, जिसका इससे कनेक्शन नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। जिंदा बस वो है जो कुछ समय से वाबस्ता है। जिंदा बस वो है जो अहले बैत से वाबस्ता है। जिंदा बस वो है जो मोहब्बत अहले बैत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाजें, हमारा रोज़ा, हमारा हज, पता नहीं मैं तवाफ को बदलने की क्या जरूरत। ज़ियारत कर रहे हैं, तवाफ़ काबा कर रहे हैं, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ निसा। या जब आप घर आ रहे हो तवाफ़ निसा एक तवाफ़ कर लें, ताकि आप जब घर आ जाएं आखिरी तवाफ़ करके, तो उसके बाद आपका अपनी ज़ौजा के पास जाना हलाल होता है। हाँ बिल्कुल, जब तक ज़ौजा हलाल नहीं रहती। आगे जी लाखों रुपए खर्च करके हज पे जाते हैं, तवाफ़ निसा नहीं पता, यानी तवाफ़ ज़ियारत नहीं पता, पता ही नहीं है। और ये आने के बाद 4 बच्चे हो गए और 4 बच्चे जवान हुए, एक मौलवी बना, एक हाफिज बना, कारी बना, यहाँ से जुलूस निकला, नजर पड़ी, आलम देखा, निकाल टूट गया। तो ये जो जबान पे आता है ना, निकाह टूट गया, निकाह टूट गया, निकाह टूट गया, वहाँ निकाह हुआ ही तब था, इसका निकाह ही नहीं हुआ था। उनकी औलादे कह रही है यहाँ निकाह टूट जाता है। ये हाथ फेंक करके ताज़ीम करने से सबूत निकाह होता है। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको विद प्रूफ, और ये एकेडमिक मजलिस है जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें अगर कोई एक्ट किसी पे लग रहा है, एक्ट की जरूरत है, तो हम क्या करें? भाई सुन्नत के खिलाफ जो जाए बिदअत है, तो रसूल के खिलाफ की सुन्नत को जिन्होंने बदल दिया वो बिदअत ही है। कहना था ये कि हम अहले बिदअत है, और उल्टा कह रहे हैं। सुन्नत वो है जो नबी फरमाए, सुन्नत वो है जो हुजूर करे, सुन्नत के खिलाफ ना हो। यहाँ अलग नहीं, सुन्नत के खिलाफ है, ताज़िया सुन्नत के खिलाफ है, अली का जिक्र सुन्नत के खिलाफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया आपने पूरा बदल दिया। क्या दिखेगा? क्या आईना उल्टा करके देख रहे, सही नजर नहीं आ रहा, तो ये पूरा दीन मुनकलिब कर दिया और इसे बचाया करबला में हुसैन ने। तो इसलिए अब ये दीन है हुसैन। अब ये दीन है हुसैन। तो लोगों ने तवाफ़ ज़ियारत छोड़ दी और फिर ऐसे ऐसे मसले जाते, ताकि एक बड़ा अजीब मसला याद आ रहा है। बहिश्ती ज़ेवर इतनी मोटी किताब है, उसमें पूरे उलमा देवबंद ने मसले लिखे है, फिक्री मसाइल है। जैसा हमारे पास तौसील मसाइल होती है, वैसा उनके पास किताब का नाम है बहिश्ती ज़ेवर है, यानी जो फिक्री मसले वो जन्नत का ज़ेवर है। ठीक है सर, क्या है उसमें? उसमें बच्चे के हलाली और हरामी होने का एक मसला है। ताकि देखो, अगर किसी शख्स की शादी दुल्हन मशरिक़ में, दूल्हा मगरिब में, यानी समझ लीजिए दुबई में लड़की है, यहाँ लड़का है, शादी हो गई, फोन पे हो गई। अब वो कहते हैं अगर मियाँ बीवी ये दोनों एक मशरिक़ में एक मगरिब में मिले ही नहीं,
اور وہاں بیوی کو بچہ ہو گیا تو شریعت کیا کہتی؟ تو کہا کہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسے بیٹا ہی مانا جائے گا اگرچہ کہ ماں باپ نہ ملے ہوں، جو ماں باپ بنے ہی نہیں، وہ ملے نہ ہو، ملاپ نہیں ہوا، بچہ ہو گیا تو کہا کہ نہیں اسی کا بچہ ہے جس کا نکاح ہوا۔ بولے کیسے؟ تو بولے ایسے کہ وہ مومن کی کرامت ہے۔ نہیں سمجھے آپ کیا ہے؟ اب لفظ بدل دیتا ہوں، میں ایک معجزہ ہے۔ اگر یہ مشرق میں وہ مغرب میں اور اس کے بعد بچہ اس سے ہو جائے، ملاپ ہی نہ ہو تو اس کے بعد اولاد ہو جائے تو معجزہ ہے، مومن کی کرامت ہے۔ تمہیں ایسے معجزے سمجھ میں آتے ہیں، علم کا معجزہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پڑھ کے آدمی کہتا ہے مارکیٹ میں جتنے کرائم ہے وہ سب فقہ میں موجود ہے۔ اس کو ایک طریقہ دیا، اس کو کہتے ہیں ہیلہ شرعی۔ ہیلہ مطلب بہانہ، ہیلہ شرعی ایک شرعی بہانہ علماء نے رکھ دیا کہ یہ کر لو ہو جائے۔ گناہ کو نیکی میں بدلنے کی کوشش نہیں، گناہ کتنا ہی کرے آگے لیکن ایمان ہوگا تو اس کے اندر آواز آئے گی یار میں نے گناہ کیا۔ زنا پہ زنا کیے جا رہا، شراب پہ شراب کیے جا رہا، لیکن جب کوئی کہے تو اتنا تو مانتا ہے کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں، صحیح نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو قبول اس لیے ہوتی ہے کہ احساس گناہ اس کے اندر تھا، اور اگر یہ احساس ختم ہو جائے وہ یہ سوچے کہ نہیں اب یوں کروں تو جائز ہے، ایسے کروں تو جائز ہے، تو اللہ اس کا حجتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور مولا حسین کی یزید سے جو جنگ وہ کس پہ کہ اس نے حرام محمد کو حلال محمد کو حرام کیا۔ تو اب مولا نے کہا، یعنی مولا کا مقصد یہ تھا کوئی شراب پیتا ہے زندگی پر وہ جانے خدا جانے، لیکن اسے کوئی حلال کہہ دے میں گھر میں نہیں رہ سکتا۔ حرام کو کوئی حلال کہہ دے، حلال کو کوئی حرام کہہ دے تو پھر حسین کی تلوار بے نیام ہے۔ تو یہ لڑائی تھی حلال و حرام کی۔ مومنین اس بات کو یاد رکھ، زندگی میں گناہ ہوتے نہیں ہوتے نہیں، مگر کسی گناہ کو حلال نہ سمجھ، کسی گناہ کو حلال نہ سمجھ۔ گناہ کو حلال سمجھتے ہی آدمی یزید ہو جاتا ہے۔ شفیع المذنبین ہے، گناہ گاروں کی بخشش ہے، مگر وہ شفیع المرتدین نہیں ہے، مرتدوں کی شفاعت نہیں کرے گا۔ جو کافر ہو جائے اس کی شفاعت نہیں ہے، جو گناہ گار ہے اس کی شفاعت ہے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ مودت جو بنتا ہے کہ اس سلسلہ مودت میں آپ کے پاس قول بھی ہو، آپ کے پاس فعل بھی ہو تب تو صحیح ہے، اور اگر قول ہے آپ کا الگ، نبی کا الگ، فعل ہے آپ کا الگ، نبی کا الگ، تو یہ جو الگ ہو گیا یہ ہے منافقت۔ یقولون ما لا تفعلون، اللہ نے کہا جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور رسول نے جو کہا اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ مودت نہیں۔ مودت اس بات کا نام ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے طریقے پہ چلو۔ یہ انسان کا نیچر ہے۔ کتنے بچوں کو، جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کی طرح کرکٹ کھیلے، کوئی اگر کسی ہیرو سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرح بال رکھے گا، اس کی طرح کپڑے پہنے گا۔ یہ نیچر ہے آدمی۔ کوئی کسی شاعر سے محبت کرتا ہے تو اس کا کلام اس کے انداز میں پڑے گا، کوئی کسی ذاکر سے محبت کرتا ہے تو اس کا نقطہ اس کی طرح پڑے گا۔ تو جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی کھیل رہا ہے اچھا جوان کرکٹ، سمجھیے کہ سولو گنگولی کی طرح کیا، اسے دیکھ کے کسی نے کہا ہے گنگولی کہتے کے مار، تو اس نے تو نہیں کہا، لیکن دیکھنے والے نے کیوں کہا، اس کے کھیل کا انداز اس سے ملتا ہے۔ کسی کے بالوں کو، کسی
देखेगा, किसी हीरो का नाम लेगा, तो उसने तो दावा नहीं किया मैं हीरो को मानता हूँ, मगर उसका अंदाज बता देता है कि इसका स्टाइल फला हीरो से मिलता है, इसका खेल फला खिलाड़ी से मिलता है। क्या अहले बैत को मानने का इतना भी हक नहीं है? क्या अहले बैत का कोई एक तरीका ऐसा अपना लो कि दुनिया देख के कहे ये है इमाम सादिक, ये मौला अली का मानने वाला, अमानत में खयानत नहीं करता, ये हुसैन का मानने वाला, हक के ऊपर डट जाता है, मर जाता है, हक के खिलाफ नहीं जाता। हमारा कैरेक्टर बोले कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई, ये लोग जब इस तरह का अंदाज अपनाते हैं ना, किसी को चाहते हैं, तो उनके अंदाज से, स्टाइल से पता चल जाता है किसको मानते हैं। तो अहले बैत के हम जो मानने वाले हैं, तो दुनिया कहे कि शिया उसे कहते हैं भाई, ये लोग झूठ नहीं कहते। क्यों? अरे इनके पास इमाम सादिक है, ये हक बात पे मर जाएंगे, ये हक के खिलाफ नहीं जा सकते, ये हुसैन के मानने वाले हैं। तो कोई हमारा कौमी कैरेक्टर, मुख्तलिफ कौमों ने अपना अपना निशान रखा। जैसे सिख लोग हैं, उनकी कम्युनिटी में सूरत से लेकर पंजाब तक कोई भीख मांगता हुआ सिख नहीं मिलेगा। सरदार कभी भीख नहीं मांगता, सरदार भीख नहीं मांगता, भीख मांगे सरदार। वो उनकी छोटी कम्युनिटी है, वो अपने आदमी को भीख मांगने नहीं देते। बाजार में छुरियाँ बेच लेगा, कुछ भी करेगा, मगर भीख नहीं मांगेगा। उन्होंने अपना बना का राजपूत, काका राजपूत साहब जान दे देगा, वादे के खिलाफ नहीं जाएगा। तो मुख्तलिफ कौमों ने अपने कैरेक्टर से एक नाम बनाया है, अपना इमेज। हमारा क्या कैरेक्टर है, क्या है कैरेक्टर के एतबार से? कुछ भी नहीं। दुनिया में किस नाम से भी नहीं जानती, सिर्फ अदाल हुसैन के नाम से जाती है, वो मौला की दी हुई इज्जत है, मातम है मौला की दी हुई इज्जत है, पिंपर है मौला की दी हुई इज्जत है। लेकिन हम जब शिया कह के अपने कैरेक्टर को बताना चाहे तो दुनिया क्या याद करेगी? कुछ भी नहीं। तो कुछ तो होना चाहिए ना, उल्टा हो जाए तो मोहब्बत के खिलाफ, और सही चले सही है। जहाँ मैं तबर्रा फजाइल पढ़ता हूँ, वहाँ ये भी मिंबर का आप है कि मैं कुछ बातें इस तरह की कह दो जो साइकोलॉजी के एतबार से, मिंबर के एतबार से और कुरान और हदीस के एतबार से बिल्कुल सनद रखती है। क्योंकि अगर हमने अपने मौला से वफादारी नहीं की तो हमारी औलाद हमसे वफादारी नहीं करेगी। जिसके नाम पे हमको इज्जत मिल रही है, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं, हमारा कोई एमपी नहीं, हमारा कोई कुछ भी नहीं, लेकिन इस शान से अदादारी हम कर रहे हैं, गैदरिंग हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं। कोई हमारा एमएलए है, यहाँ सूरत में कोई शिया एमएलए, कोई शिया एमपी है, मगर जुलूस निकल रहा है किसके क़यादत में? इमाम ज़मानी की। तो ये अल्लाह की दी हुई इज्जत हुसैन के नाम, बस इसको संभाल के चलना है। काला कपड़ा हो तो कभी वक्त की जायदाद न खाए, शिया हो कभी औका की जायदाद न खाओ, शिया है कभी मौला की ज़मीन न बेचे, शिया है कभी माले इमाम शैख इमाम न खाए। कितना खाएं? खा के पी के मरना ही है, भूख से भी मरना है, खा के भी मरना है। भूख से मरेंगे पूछ नहीं होगी किसी का, खा के मरेंगे पूछ होगी। हमारा तो बैठ का झगड़ा ही है कि अपना खाओ, अहले बैत का मत खाओ। तो अहले बैत का अगर खा लेगा उसकी शफाअत नहीं होगी। और फिर ये जो मजलिसें अब करते हैं, तो ये मजलिसें आज तो फूलों की सेज पे, कालीनों पे हो रही, लेकिन अभी इसी दौर में आप देखें अफगानिस्तान में क्या मजलिस करना आसान, क्या डेरा इस्माइल गाजी का पाकिस्तान में मजलिस करना आसान, क्या बारह चनार में मजलिस करना आसान? ऐसे ही मजलिस होती, पता नहीं कहाँ पर ब्लास्ट हो, पूरी चेकिंग लगी हुई रहती, पता नहीं चलती।
कोई आया, किसी ने मिंबर पे गोली मार दी, किसी ने बम ब्लास्ट कर लिया, तो फिर दूसरे दिन पुलिस छोड़ी। उनके हौसलों को सलाम। वो लोग भी अपनी ऐलान हक के सिलसिले में इक़दाम हक में इतना मजबूत है कि दुश्मन के मैगजीन खाली हो गए, बम खत्म हो गए, हाथ शल हो गए, मगर मातम के लिए हाथ नहीं होगा, जुलूस के लिए हाथ नहीं होगा। हम लोग बहुत आसानी से हमेशा कर रहे हैं। हिंदुस्तान, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। में आज़ादारी हो रही है, तो जब तक आज़ादारी होती रहेगी मुल्क भी अपना मान में रहेगा। और हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना, हमारी मजलिसों को हुसैनियत की दरसगाह बनाना, हमारी मजलिसों को हुसैनियत का मीडिया बनाना, हमारी मजलिसों में कुछ अहले बैत के दुश्मनों के बारे में, कुछ अहले बैत के बारे में ऐसे मैसेज देने की कोशिश करना चाहिए कि जिससे कौम के बच्चों और जवानों के अंदर शहादत हुसैन सुनकर इस्लाम के अंदर जज्बा पैदा हो। और करबला वो दरसगाह जहाँ से सब कुछ मिलता है, जज्बा शहादत भी आपको मिलता है, दर्स इंसानियत भी आपको मिलता है, और फिर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो। आज हम चंद मुश्किलात में घट जाते हैं तो नमाज में दिल नहीं लगता। मैंने सुना लोगों को कहते हुए, क़िबला जब से नमाज़ें शुरू की है तब से हालात और भी बढ़े। किसी को किसी भी रकात में शक हो रहा है, किसी को चौथी रकात में शक हो रहा है, कोई कर्जों में मुब्तला हो गया, नमाज में जीने लगा। हाय सैयद सज्जाद, काज़ी जरवली साहब ने कितनी अच्छी बात कही, करबला के बाद सैयद सज्जाद। दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, पूरी करबला हो गई। और मौला सज्जाद ज़मीन पर सर रखे हुए सुभान रब्बियल आला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये मौला फरमा। हम उनके माथे वाले, हम उनकी ज़ियारत पे जाते और मौला जब कैद खाने से रिहाई होती है, शायद मैं पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ा, याद नहीं आता कि जब रिहाई हुई तो बीवियों की जंजीरें तो उतर गई, मगर सैयद सज्जाद की जंजीरें नहीं उतर गई। तौक भी नहीं उतर रहा था, गले का तौक, कमर का लंगर। हुआ ये था कि जंग आलूद हो गई थी जंजीर की कड़ियाँ, खुल नहीं रही। जिंदान बाग में जाके यजीद से कहा, वजीर से कहा कि वो जो कैदी है बड़ा नमाजी, बड़ा इबादत गुजार और अल्लाह की राह में रात रात भर अल्लाह की बारगाह में रोने वाला, ऐसा इबादत गुजार कैदी नहीं देखा, लेकिन उसकी जंजीरें नहीं खुलती, सब में जंग आ गई। तो वजीर ने कहा कि क्या करना होगा, कल लोहार को बुलाएंगे। लोहार को बुलाया, लोहार को बुलाया गया। लोहार आया, उसने देखा था कि इसमें तो इतना जंग आ गया है कि कीली हर कड़ी पे रखनी होगी और उस पर हथौड़ा मारना होगा, और बगैर उसके खुलेगी नहीं। यजीद ने कहा जैसे तैसे आज़ाद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कैदी यहाँ रहे, कहीं इनकलाब न बर्पा हो जाए। उसने कहा कैदी मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ और हुनर नहीं है, इन कड़ियों को खोलने के लिए इस पे कील रख कर के हथौड़े मारने होंगे, उसके लिए तुम्हें इस तख्त पे लेटना होगा। सख्त तख्त पे मौला लेट गए और उसके बाद उसने गर्दन की तौक पर कील रख के जैसे ही हथौड़ी मारना शुरू किया, सैयद सज्जाद ने आवाज दी, या बता बीबियां
नारे खाने लगी, हाय सज्जाद, रास्ते के तुर्रे ताजियाने और यहाँ पर हथौड़े, गले का तौब बड़ी मुश्किल से खुला। उसके बाद में लोहार ने कहा, बस जरी देर की तकलीफ है, बर्दाश्त कर लीजिए, फिर आप अपने वतन जाएंगे। तो आप क्या करने वाला है? ताकि आपके कमरबंद पे जो लंगर बता है, जो पैरों में बेड़ियां हैं, इस कमरबंद को खोलने के लिए मुझे हथौड़ी चलानी होगी। इमाम ने कहा तो हथौड़ी चला। एक मतलब में हथौड़े मारे गए। मौला ने याद किया, बाबा आपके जिस्म पे घोड़े दौड़ाएंगे, मेरे जिस्म पे हथौड़े मारे जा रहे। अल्लाह अकबर। क़यामत की मंजिल है। और जब सैयद सज्जाद तख्त पर से उठे, बीवियों ने संभाला। कैदी को देखकर, सज्जाद को देख करके लोहार बहुत रोया। वजीरों ने कहा, तू क्यों रो रहा है? कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा कैदी नहीं देखा जिसके जिस्म पे आज़ाए सजदा पे नमाजों के गट्ठे हैं, और जब मैं हथौड़ा मार रहा हूँ रोता भी जाता है, अल्लाह की तस्बीह भी करता जाता है। और मैंने इस कैदी में ऐसी खुशबू देखी, ऐसा लगता था जैसे जन्नत की खुशबू आ रही है। क़यामत की मंजिल थी। और जब बीवियां लेकर के चली हैं, कैद खाने के सामने आए और एक मर्तबा का, फूफी अम्मा जरा सा मैं सर झुका के देख लूं। सर झुकाया, जिंदा